Hello. Four basic data type. Yes, four basic data types that we have covered. And So with respect to that data types, again, we have seen one very important concept, that is how to store that data type in some of the entity, or that entity we can call it as a variables. Okay. So anybody can tell me what are different rules to define that variable name, to store that specific data type in that specific variable or value in that specific variable. Anybody? हमने कुछ तो रूल्स देखे थे ना, 4 to 5 rules are there to declare that Yes, variable sir. name. हाँ, anybody one by one can tell me what एक are तर those? हाँ, स्मॉल लेटर यूज करू शकतो, yes, कॅपिटल लेटर यूज करू शकतो, okay, अंडरस्कोर यूज करना. अंडरस्कोर, yes, अंडरस्कोर एंड कैपिटल एंड लोअर केस से हम क्या कर स्मॉल. सकते हैं, उस वेरिएबल का नाम स्टार्ट कर सकते हैं. दैट इज फर्स्ट हाँ. कैरेक्टर ऑफ योर वेरिएबल नेम कैन बी आइदर लोअर केस, अपर केस और अंडरस्कोर ओनली. नंबर कैनॉट बी योर फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ योर वेरिएबल नेम. क्लियर? यस और नो? Yes, sir. Yes, Second sir. thing that we have covered is your variable name is case sensitive. That is, if your variable name is uppercase, all characters in variable name uppercase, same variable name, but all characters are in lowercase. So both are what? Different things. Yes or no? Yes, sir. That thing also Yes, that sir. we cover. Okay. And that third part that we have covered is don't use any punctuation characters except underscore. डोंट यूज एनी पंक्चुएशन कैरेक्टर एक्सेप्ट अंडरस्कोर. मतलब स्पेशल सिंबल जो जितने जितने दिए कीबोर्ड पे, उसमें से एक ही सिंबल यूज कर सकते हैं. वो कौन सा बोला मैंने? अंडरस्कोर. अंडरस्कोर. वो भी क्यों यूज करना है? जैसे कि हमें दो वर्ड्स हमें एक साथ यूज करने, मतलब वी हैव टू गिव अ वेरिएबल नेम लाइक फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय आईडी, स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट नेम. सो इन दैट केस व्हाट वी हैव टू, सेपरेशन पर्पस के लिए हम क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम ऐसा नाम दे सकते हैं दैट वेरिएबल. ओके. Then another rule that we have covered is what? A combination of your variable name can be underscore, numbers and alphabets. That can be lowercase and uppercase. Clear है सबको? Yes, Yes, or no? sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. So I think most of the students have shared me their homework regarding yesterday's topics that we have covered. That is, the homework is what display the different data type using variables and literal constant means वही जिसको हम जो नंबर को जो भी वैल्यू हम असाइन करते हैं वेरिएबल को, उसको हम लिटरल कांस्टेंट्स बोलते हैं. So that is homework. Most of the students I have checked their homework very nicely. They have done that specific part of programming with respect to that online platform. Or some of the students also use some IDE for that specific. Those who have laptops, they have performed those homework on that specific IDE for that specific Python. Okay. Next thing that I want to tell you, I have uploaded all 4 assignments on your Google Classroom. Yes or no? All of you seen that? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Yes, sir. So how to complete that assignment? Now we have almost on the way to complete our first unit. Some of the topics remaining, for example, operators and some of the other topics. So within a 1 or 2 lectures, we will cover that. So after completion of that specific unit number 1, I will give you deadline for that submission of that specific assignment number 1. So all of you submit that, write that assignment, scan your assignment, and upload it on that specific assignment number 1 tab on that Google Classroom. Total 5 days will be there for deadline for that one assignment. So within a 5 days, you have to complete that 5 questions. Only 5 questions are there in that assignment. Next thing that I have uploaded, lab assignment करके मैंने एक tab आपके Google Classroom पे upload किया है. All of you seen that? Yes, sir. Okay. So in that assignment, I have actually scanned the write-ups of previous students, that is last batch students. सर कब तक लेना है? हाँ नहीं बोलता हूँ ना मैं आपको, one by one I will tell you how to submit that. Okay. So lab assignment अभी today itself our one session will be lab session is there. Okay. At 2:30. Yes or no? Yes, sir. So in that we will complete our assignment number 1. That is experiment number 1 from SPPU ने जो भी सिलेबस में दिए उसमें से फर्स्ट असाइनमेंट वी विल कंप्लीट. सिंपल असाइनमेंट, कुछ नहीं उसमें. सो क्या करना है आपको, जैसे हमारे असाइनमेंट्स कंप्लीट होंगे, कैसे, कहाँ पे, इन लैब सेशन 1 या 2 जो भी होंगे. सो लाइकवाइज यू हैव टू राइट अप फॉर दैट असाइनमेंट नंबर 1, लैब असाइनमेंट नंबर 1, जो मैंने आपको ऑलरेडी सर्कुलेट किया है, जिसमें क्या क्या है, टाइटल होगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव होगा, उसके बाद एल्गोरिथम फॉर दैट असाइनमेंट, फ्लो चार्ट फॉर दैट असाइनमेंट, and some theory regarding that assignment.
and conclusion. So these 5 things you have to write for each and every experiment. All of you clear with this? Yes, sir. Yes or no? Yes. और उसका सैंपल मैंने ऑलरेडी आपको मेल नहीं क्या गूगल क्लासरूम पे ऊपर अपलोड किया है. सेम वैसे की वैसे कॉपी नहीं करना है, वो सैंपल मैंने दिया है. इफ यू वांट टू चेंज योर फ्लो चार्ट का कुछ आपको वहां पे अंदर कुछ लिखना है अलग, यू कैन राइट. एल्गोरिथम आपको अलग से लिखना, यू कैन राइट योर एल्गोरिथम. क्लियर है सबको? यस सर. यस सर. हाँ, तो Yes, 1 by 1 आपको वो कंप्लीट करना है. सारे राइट अप एक साथ नहीं लिखना. और उसमें एक चीज है, राइट नंबर असाइनमेंट नंबर 8, एक्सपेरिमेंट नंबर 8 जो फाइल हैंडलिंग वाला है, एक्चुअली वो हमारे अभी फॉर करंट सिलेबस वो नहीं है, वो हमारा कंप्लीट नहीं होने वाला. सो आई हैव चेंज दैट असाइनमेंट और दूसरा असाइनमेंट उसमें ऐड किया है. वो बाद में आपको बताऊंगा क्या असाइनमेंट उसके रिगार्डिंग लिखना है आपको, वो राइट अप क्या लिखना है रिगार्डिंग असाइनमेंट नंबर 8. 7 तक तो पूरा कंप्लीट करने वाले हैं हम, बट 8 वाला एक्सपेरिमेंट कौन सा लेने वाले आई विल टेल यू लेटर. ओके, ऑल ऑफ यू क्लियर विद दिस? यस सर. सो सारे लाइट अप अभी एक साथ लिखने नहीं है आपको. 1 by 1 जैसे आपके यूनिट नंबर 1 होगा तो असाइनमेंट नंबर 1 कंप्लीट करना है, यूनिट नंबर 2 होगा. और एक कर सकते हैं आप, यू कैन डू जैसे कि टॉपिक वाइज हमारे कुछ कंसेप्ट हुए और वो क्वेश्चंस हम आपको दिख रहा है कहाँ पे असाइनमेंट नंबर 1 में, तो यू कैन गो फॉर दैट. सो टॉपिक वाइज भी आप असाइनमेंट लिख सकते हैं, डायरेक्टली फाइनल लास्ट में लिखना है तो. जैसे कि अभी तक हमारे बहुत से टॉपिक कवर हुए, उसमें से रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस आपके असाइनमेंट नंबर 1 में होंगे, तो यू कैन राइट दैट क्वेश्चंस एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दैट. Hello. I think 3 questions, sir. Topic. Yes. Yes. We have done with 3 questions from that specific assignment. So you can write that 3 questions right now also. Okay. All of you clear with this? Sir. Yes, sir. Some students Huh. are waiting outside. Okay. Some students are waiting outside. Okay. I think there's 104 students have already 105. Okay. Tell them to join now. Okay, so all of you clear with what I have told you regarding what how to write your assignments and how to write your lab assignments. Yes, sir. One thing I want to tell about lab assignment, वो तो हो गया राइट अप के बारे में, that I have told you regarding जो मैंने अपलोड भी किया. नेक्स्ट थिंग यू हैव टू डू व्हाट, जैसे कि आप होमवर्क कर रहे हैं ना अभी, जो भी होमवर्क कर रहे हैं अभी, जैसे आपको मैंने बोला कि राइट दिस एल्गोरिथम गिव आउटपुट फॉर टेक अ स्क्रीनशॉट, वैसे आपको क्या करना है, जो भी मैं आज असाइनमेंट लेने वाला वही असाइनमेंट आपको खुद से आपको करनी है एट योर होम. जो भी आपको मैं करके दिखाने वाला हूँ उसका स्क्रीनशॉट आपको लेके आपको उसको बैकअप कर लेके रखना है उसका, और वो सारे 8 एक्सपेरिमेंट से आपको कंपाइल करके, मतलब टोटल एक पीडीएफ बना के आपको अपलोड करने. किस सेक्शन में? लैब असाइनमेंट सेक्शन में. ऑल ऑफ यू क्लियर विद दिस? यस और नो? तो 2 चीजें आपको करनी है, एक तो आपको एक्सपेरिमेंट करना भी है खुद से. Second thing what you have to do, second thing that you have to do is what, राइट अप लिखना है उस असाइनमेंट का. ज्यादा नहीं, 2 या 3 पेजेस में राइट अप होगा. एल्गोरिथम फ्लो चार्ट, कुछ थ्योरी पार्ट है, 2-3 पेजेस में आपका राइट अप खत्म हो जाएगा. सो एनी डाउट रिगार्डिंग सबमिशन ऑफ दिस पीपीएस सब्जेक्ट? नो सर. सो अभी आपको उसके लिए आपको पूरे 2 मंथ से अभी आई थिंक 23rd ऑफ योर व्हाट कंक्लूजन ऑफ टीचिंग, तो उसके बाद 2-3 दिन में आप सारी चीजें आप क्या करना है, टाइम टू टाइम आप करेंगे तो इट इज वेरी नॉट डिफिकल्ट फॉर यू टू सबमिट दोज असाइनमेंट. तो बाद में एक साथ करेंगे तो बर्डन आ जाएगा आपके ऊपर. सो इसलिए मैंने सारे असाइनमेंट ऑलरेडी 23rd ऑफ जुलाई इज योर टर्म एंड फॉर योर टीचिंग. उसको एक 1 वीक एक्सटेंड भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर शेड्यूल ऑफ व्हाट end sem exam of semester 2 exam. Okay, we have to write assignment. Yes, you can write assignment on your notebook or you can write in your assignment pages. नोटबुक पे लिख के आप क्या कर सकते हैं, उसको स्कैन करके भेज सकते हैं, या राइट अप पेजेस पे. पर आपको जो लैब असाइनमेंट लिखने हैं वो सारे आपको असाइनमेंट पेजेस पे लिखने हैं, 1 साइडेड और 2 साइडेड असाइनमेंट पेजेस. क्लियर? ऑल ऑफ यू क्लियर विद दिस? ओके. But you can write your lab theory assignment on notebook also and scan it and upload it on your Google Classroom. Okay? Yes or no? Yes sir. Okay. So we will जो भी जिनका बाकी अभी I think 115 students have joined that group. जिनका बाकी है they can join that group and complete that specific activity regarding that. Flip classroom activity हम लेने वाले
बट उसका नेक्स्ट वीक में देखेंगे. I will ask the students, those who are ready to give the presentation of that specific topic that we have covered up till now. जो भी आपको देना है. Next week I will tell you who are ready to give the flip classroom activity. उसके लिए separate session होगा. You have to present your one topic regarding the syllabus that we have covered up till now. Okay? All of clear with this? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now we will move forward. So अभी किसी को इसके बाद रिगार्डिंग डाउट्स है क्या? जो अभी वेरिएबल डिक्लेयर किया उसके बाद उसमें कुछ वैल्यूज असाइन किए उसके बाद उसका आउटपुट हमने डिस्प्ले किया. एनी डाउट? No, sir. ओके. उसके बाद मल्टीपल असाइनमेंट. अभी और एक डेटा टाइप हमें देखना है, बुलियन डेटा टाइप, जो जनरली डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट जहां पे कंडीशंस हम यूज करते हैं वहां पे जनरल यूज होता है, पर डायरेक्टली हम यहाँ पे भी कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने सिंपली प्रिंट एक स्टेटमेंट लिखा, प्रिंट 30 less than 40. So what I have written here? What is the statement I have written? All of you, the screen is visible to all? Yes or no? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. So this is regarding Boolean data type. I will write here one comment. Boolean data type. Boolean data type. So Boolean data type is another data type with respect to Python programming. Okay, अभी इसमें क्या होता है? There are two types of values are there for Boolean data type. Anybody can tell me? True and false. Which are those? True and false values are there. True and false. और जो values होते हैं, मतलब जो भी कीवर्ड है true and false के लिए, वो कैसे होता है? First character of that specific true is capital T and specific of that false is capital F. और आप बाकी के जितने भी रिजर्व वर्ड्स देखेंगे बाय गिवन बाय दैट स्पेसिफिक व्हाट पाइथन प्रोग्रामिंग, सारे क्या होंगे? लोअर केस में होंगे. बट यहाँ पे आपको दिखेगा कि क्या ट्रू का कैपिटल फर्स्ट कैरेक्टर इज कैपिटल एंड फॉल्स का फर्स्ट कैरेक्टर इज फॉल्स, भी वो देखेंगे. तो अभी टेल मी व्हाट इज अ बुलियन वैल्यू फॉर दिस स्टेटमेंट? व्हाट इज अ बुलियन वैल्यू फॉर दिस स्टेटमेंट? True, na? True. So Yes. we say this. Getting? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. All of you getting the Boolean data type? Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Okay. For example, I will do one thing now. For example, print, or I will take one variable a is equal to, for example, 56. Variable के साथ भी कर सकते हैं हम. b is equal to 75, and then print in bracket a greater than b. Now tell me what will happen with respect to print. Yes, false. False. So all of you clear with this Boolean? तो इस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके एग्जाम में. और एक आफ्टर ईच एंड एवरी यूनिट आई विल गिव यू वन क्विज. क्विज मींस एमसीक्यू एग्जाम. MCQ type of questions are there. One question is there, 4 options are there through Google form. So total 25 questions will be there regarding unit number 1, unit 2 likewise. So all of you give that quiz after completion. I think after 2 lectures we will finish with this unit. So I will share the link for this specific quiz 1. So all have to compulsory give that quiz, because in mentor meeting itself most of the students tell that give the quiz. Actually I have last semester also I am giving the quizzes, but still now in last meeting, mentor first meeting, most of the students asked to give the quiz or MCQ test for that specific topics regarding unit number 1, 2, 3 likewise. So that's why I have prepared one quiz for unit number 1 also. Questions regarding MCQ questions regarding I have already shared on your Google Classroom. आप उससे check कर सकते हो क्या prepare करना है आपको. Regarding unit wise भी है, combine भी है. So all of you clear with this Boolean data type, true and false? Yes, sir. Okay. Yes. Next thing I will write here. ये जो भी यहाँ पे मैंने बताया है, these are what relational operator. अभी operator concept हम देखेंगे, पर Boolean में generally relational operator use होते हैं. Tell me now what will happen with respect to this? Actually this operator is called as not equal to operator. तो ऑपरेटर हमने ये देखा ना, ये इसलिए यहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा. यस, तो वहां पे क्या आना चाहिए आंसर? फॉल्स आना चाहिए. False. यस, आया फॉल्स? यस और नो? Yes, sir. ओके ओके. नाउ Yes, sir. यहाँ पे मैंने डबल इक्वल टू, अभी यहाँ पे ये ऑपरेटर डिटेल में हम
आफ्टर टाइम मिलेगा तो आज भी हो सकता है वो. ओके, 20 equal to 20. Now it will give you what? True. Yes, True, it will sir. give you true. Yes. Okay, all of you getting this? Boolean data type, all of you getting this? Actually Yes, syllabus में नहीं है, but Yes, sir. extra part मैंने आपको बताया कि Boolean data type क्या होता है. But sometimes क्या होता है, यूनिवर्सिटी का पता नहीं होता हमें. They can ask the question on that Boolean data type also. Okay. Anybody having doubt regarding this Boolean data type? sir. सर वो Oh, हाँ. प्रिंट ए इज ग्रेटर देन बी का कैसा आया फॉल्स? A की वैल्यू क्या असाइन की हमने 56 और B की कितनी है? 75. So whether वही 56 56 greater than 75? नो सर So what is the answer then? फॉल्स False. सर हाँ. लैब असाइनमेंट जो आपने दिया ना वो अभी से लिखने चालू किया तो चलेगा? I think don't do that, because what happened, we have not completed with that specific experiment till now. क्या होगा उससे, पता उससे लिखने से कुछ आपको कुछ फायदा क्या उससे? डायरेक्टली आप लिखेंगे. इफ यू आर नो, उसमें एल्गोरिथम लिखना है, फ्लो चार्ट लिखना है, आपको असाइनमेंट तो समझ में आना चाहिए ना पहले क्या असाइनमेंट है. तो एक्सपेरिमेंट पहले करो, उसके बाद ट्राई फॉर दैट. टाइम है ना आपके पास? उस टाइम मिलेगा लिखने अरे को? मैं क्या, नहीं उस टाइम नहीं, अभी आज हमारा पहले 2 असाइनमेंट हो सकते हैं आज ही कंप्लीट, तो यू कैन गो फॉर फर्स्ट 2 असाइनमेंट. आज प्रैक्टिकल है ना हमारा, यस और नो? हाँ सर. हाँ, तो प्रैक्टिकल में आज हमारे 2 असाइनमेंट, इफ यू आर डन विद 2 असाइनमेंट, फर्स्ट 2 असाइनमेंट सिंपल है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स मतलब लॉजिक ज्यादा यूज नहीं करना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है. तो 2 असाइनमेंट आप कंप्लीट करो, नेक्स्ट वीक में अगले 2 असाइनमेंट करेंगे हम कंप्लीट. हाँ चलेगा. हाँ, तो इस मंथ में सारे 8 एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो सकते हैं एज पर टाइम लिमिट. मतलब कैसे होता है लैब असाइनमेंट, कैसे है टॉपिक वाइज जाना है. जैसे कि डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट सेकंड चैप्टर में, तो डिसीजन मेकिंग के असाइनमेंट हम कैसे करेंगे, पैरेलल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. कि मैं मतलब आपको लेक्चर में भी कंसेप्ट ले सकते हैं और लैब में भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम. सो वी विल कंप्लीट इट इन विद इन 4 वीक्स. टोटल 8 असाइनमेंट. 4 वीक मतलब जून के एंड तक हमारे सारे असाइनमेंट कंप्लीट हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम. Anybody having doubt regarding this? सर हाँ, No, sir. सर इसको सिंगल या डबल कोट में लिखा तो? किसको? ये प्रिंट आपने जो लिखा है वो. हाँ, क्यों लिखेंगे डबल कोट में? क्या होगा इससे? क्या होगा? नहीं मतलब होगा सिंटैक्स एरर. नहीं, सिंटैक्स एरर नहीं आएगा, वो प्रिंट होगा ना. पेज प्रिंट हाँ, डबल कोट का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज अ डबल कोट? व्हाई वी हैव टू राइट द डबल कोट? यस, टू प्रिंट एनी मैसेज ऑन योर स्क्रीन. और वेरिएबल की वैल्यू आपको प्रिंट करने है, डायरेक्टली कुछ प्रिंट करना है, तो व्हाट यू हैव टू राइट, डायरेक्टली प्रिंट में लिख सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे ए वेरिएबल हमने डिक्लेयर करके रखा है और उसको प्रिंट किया है. प्रिंट मतलब एक्सप्रेशन लिखा है यहाँ पे, ए ग्रेटर देन बी. तो ए ग्रेटर देन बी की जो भी वैल्यू है, बुलियन वैल्यू, दैट विल बी डिस्प्ले. यस और नो? क्लियर है? हाँ, यस. ओके. तो यहाँ पे मैंने कुछ लिखा, चेक A is greater or B is greater. कॉमा दिया तो क्या होगा अभी? चेक A is greater और B is greater. कॉमा करके क्या आएगा वहां पे, मतलब आगे क्या आएगा? ओके, ट्रू आएगा ना बाद में, यस और नो? नहीं, फॉल्स. ट्रू ही बोलते हैं, फॉल्स. यस, गेटिंग? Yes or no? Yes sir. Yes, sir. Okay. So, any doubt regarding this concept of what Boolean data type? कुछ नहीं, सिर्फ ट्रू और फॉल्स 2 वैल्यूज होते हैं. रिलेशनल ऑपरेटर अभी पार्ट जो आपको मैं डिटेल में सिखाऊंगा. सो 2 वही हम रिलेशनल ऑपरेटर यहाँ पे यूज किए हमने, पर डिटेल में हम देखेंगे रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते. सर ब्रैकेट कैसे आ गए? हाँ, ये आउटपुट में ब्रैकेट भी आ गए. यस, यहाँ पे दिस विल बी कंसीडर एज अ टपल. एक्चुअली टपल कंसीडर होता है, वहां पे ब्रैकेट्स आते हैं. टपल डेटा टाइप हम बाद में देखेंगे. सो टपल डेटा टाइप सेकंड चैप्टर में है, उसमें वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा व्हाट इज टपल एक्चुअली. ओके, क्लियर है? यस सर. ऑल क्लियर विद दिस? टपल कंसेप्ट हम बाद में देखेंगे. और एक्चुअली क्या है यहाँ पे, वर्जन भी मैंने अलग एक्चुअली यहाँ 2.7 भी यहाँ पे चूज किया है. सो उसकी वजह से क्या हो रहा है, वो वहां पे ब्रैकेट्स आ रहे हैं. 2.7 वर्जन एंड 3.7 वर्जन में कुछ चेंजेस है, तो उससे आपको बाद में बताऊंगा क्या चेंजेस है एक्चुअली. तो टपल के रिगार्डिंग कुछ चेंजेस.
हाँ थ्री मध्ये नाही येते सर, माझं यस बरोबर यस आलं यस मी. यस 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 यस, यहाँ पे मैंने 2.7 यहाँ पे यूज किया है. एक्चुअली आई विल चेंज दैट वर्जन. ओके, गलती से वहां पे 2.7 वर्जन वहां पे सिलेक्ट, और 2.7 वर्जन में ना रिगार्डिंग इनपुट फंक्शन भी कुछ मतलब सम ऑफ द चेंजेस आर देयर. यस पाइथन 3, यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे नहीं आएगा वो एरर. एरर नहीं एक्चुअली वो, दैट इज अ टाइप ऑफ डिस्प्लेइंग दैट स्पेसिफिक आउटपुट ऑन योर आउटपुट स्क्रीन. क्या किया था हमने, व्हाट आई हैव डन, a is equal to 5 or anything I will take, b is equal to 6 and print, okay, a is greater or b is greater. हम करके यहाँ पे क्या लिखना है अभी, a greater than b. Getting? Yes or no? Yes sir. Okay. So version wise वो that will be vary, but पहले वर्जन हम 2.7 बहुत पहले यूज करते थे, अभी 3 के अब ऑनवर्ड्स वर्जन यूज करते हैं. उसमें सम चाहिए, इनपुट फंक्शन में भी कुछ चेंजेस है रिगार्डिंग, आप देखें, मतलब नॉट मोर दैट मच चेंजेस आर देयर, बट नाउअडेज वी आर कैसे होते वर्जन्स, इसलिए तो वर्जन्स होते हैं ना. ऑल ऑफ यू गेटिंग व्हाई वर्जन्स आर देयर? सम ऑफ द फंक्शनलिटी आर एडेड डे बाय डे इन दैट स्पेसिफिक. जैसे कि आप देखो, सिंपल देखो, if you are considering Windows operating system, XP से स्टार्ट हुआ था, then अब now we are using what, which operating system we are using? Windows. Anybody? Current version of Windows? 10. Likewise Fedora देखो, Fedora, Ubuntu, lots of versions are there. 28, 29, 30 cross हो गया अभी. Lots of versions are there. Some of the changes are there. So all of you clear with this, the Boolean data type? Yes sir. Okay. Yes, sir. So next thing we will cover is input function. अभी तक हमने क्या किया था, we have not given a input by using what, user. अभी हमने क्या किया था, यहाँ पे एक ही वैल्यू डायरेक्टली असाइन की थी. yes or no? yes or no? Yes sir. और वो वैल्यू वहां पे कंसीडर हुई और वहां पे आउटपुट है. अब हम क्या करेंगे, we will assign the value by using, और we are entering the value by user, मतलब हम खुद एंटर करेंगे at the time of after compiling our code. वो देखेंगे किससे करना है. तो we will covered नेक्स्ट कंसेप्ट, इनपुट फंक्शन. एग्जाम में इसके ऊपर डेफिनेटली वन क्वेश्चन विल बी देयर, इनपुट फंक्शन. सो इनपुट फंक्शन का सिंटैक्स फर्स्ट वी विल सी. सो सिंटैक्स कैसे होता है देखो, फंक्शन. यस हाँ, व्हाट, ओके, दैट इज कमेंट, नॉट दैट मच इम्पैक्ट विल बी देयर ऑन कोड. आई विल राइट वन थिंग, फॉर एग्जांपल आई हैव टेकन वन वेरिएबल, फॉर एग्जांपल num1 इक्वल टू. सो वेरिएबल के बारे में कुछ डाउट है अभी किसी को, वेरिएबल का नाम क्या लेना है? नो सर. नो सर. अभी जनरली मैं क्या करता था, यहाँ पे वैल्यू असाइन करता, अभी यहाँ पे मैं वैल्यू असाइन नहीं करने वाला. आई विल टेक वन फंक्शन इनपुट. क्या लिया मैंने, व्हाट आई हैव टेकन फंक्शन, व्हाट फंक्शन आई हैव टेकन, इनपुट. ओके, उसके अंदर मैंने लिखा int इन ब्रैकेट डबल कोट में enter any number. What I have written, enter any number. All of you clear with this syntax Yes, of input function? हाँ, actually input अंदर आना चाहिए, int बाहर आना चाहिए. Input and int is the data type of that specific. और नहीं लिखा तो क्या होगा वो बाद में बताऊंगा आपको. हाँ, all of you clear with this syntax? num1 is equal to int input enter any number. What is the meaning of this statement? Tell me now. I will write in comment. You can tell me. Sir, it will ask the user to enter Now, any number. yes. Now, what is the use of this function? Now it will display the message on your screen, enter any number, and now you then you have to enter what, that specific input for that specific num1. So here, user have to enter any number for which variable? Tell me. num1. Yes, correct. Okay. So उसके लिए आपको यहाँ पे ये बटन ऑन करना है, इंटरएक्टिव करके बटन है, इसके बाद एग्जीक्यूट करना है. हाँ, ऑल ऑफ यू गेटिंग द मैसेज, एंटर एनी नंबर.
यस सर। Yes, sir. Yes, Okay. sir. So I will यहाँ पे इसको ऐसे मैंने एंटर किया. ओके अभी एंटर नंबर किया पर उसके बाद में हमने कुछ भी नहीं किया. यस और नो? कुछ किया है क्या हमने? नहीं, नो sir. सर। So I will do another thing. I will write another statement. Num2 is equal to int in bracket input. All of you note down these all things is very important with respect to your what जो भी आगे वाले प्रोग्राम्स हम जहां भी जो भी करने वाले हैं विथ रिस्पेक्ट टू असाइनमेंट आल्सो, तो उसमें ये सेंटेंस आपको यूज ही करना है, ये फंक्शन आपको यूज करना है. अभी ये किसके लिए होगा? फॉर विच यू हैव टू एंटर वैल्यू Num2. num2. एंटर वैल्यू फॉर num2. अभी उसके बाद क्या करेंगे कि ऑपरेशन करेंगे. num3 इक्वल टू एडिशन करेंगे, फॉर एग्जांपल num1 प्लस num2, और उसके बाद इसको प्रिंट करेंगे. किसको? Print num3. num3 को प्रिंट करेंगे. सो वी विल सी द आउटपुट. ओके आई विल रन अगेन. All of you getting the output? Yes sir. Yes, So sir. what we have done here now? Anybody can tell me what we have done here? We have not assigned permanent value for that specific variable. We are assigning the value at the time of execution of that specific code. Yes or no? Yes, sir. Hello. Yes, sir. All of you clear with this concept? Yes. अरे Yes, समझ sir. में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है Yes क्या? sir. Yes, sir. Yes Okay. sir. अभी यहाँ पे मैंने क्या किया है? I have taken int. Now you want float numbers. So what you have to do? Only simply what you have to write? What you have to write? Float. Fractional number. Yes, fractional numbers. Yes. So I will change the values and I will write here 5.6 and second value, for example, 3.4. Getting the answer? Yes or no? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. Okay. तर Second. आपण पण जर खाली इंटिजर वापरले म्हणजे विदाउट डेसिमल पॉइंटचा नंबर तर होतं का रन? बघा बरं एकदा. Means what? म्हणजे Okay. खाली Okay. Ah, okay. Okay. तू Okay. आणि Ah, yes. Yes. तिथे फ्लोटच राहू द्या Okay, मग? एक्झिक्यूट करताना. ओके ओके होणार ना. होतं का? येस नंबर आहे ना तो शेवटी, त्याला तो कन्सिडर काय करणार 1.0 वगैरे समथिंग काहीतरी करेल ना. हा. गेटिंग? हा 3.0. हाँ Yes, बट आता इथे समजा व्हाट यू आर डूइंग इंस्टेड ऑफ इंट यहाँ पे लिया मैंने, बट इंट में आपने फ्रैक्शन डाला, सो व्हाट विल हैपन? Sir, नाही ते होणार. वो whole यस number वाला यस. सो यहाँ पे क्या होगा फिर? इन दैट केस व्हाट विल हैपन? आई विल टेल यू. एरर येईल. just Getting? Invalid Yes, literal sir. for int with base 10. Okay, all of you Yes, clear getting with this? Okay. Yes, sir. ओके नाउ नेक्स्ट वन क्या देखा था हमने? डेटा टाइप सारे करके देखेंगे. कॉम्प्लेक्स ना? Yes, यस sir. और नो? Yes, अरे sir. आप बोलो ना रे, कुछ बोलते ही नहीं आप Yes sir. Yes sir. Yes, sir. ओके कॉम्प्लेक्स. अभी कॉम्प्लेक्स में क्या करना पड़ेगा हमें? किस टाइप में इनपुट देना पड़ेगा? A plus BJ यस यस उस टाइप में हमें इनपुट देना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल 1 प्लस 3j plus 3J, एंड देन फॉर एग्जाम्पल 2 प्लस 5j 5J. and we'll get a 3 plus 8j. All of you getting? Yes or no? Yes sir. Yes sir. Yes. Now I will remove this and now tell me String. what will happen. हाँ yes. String ने अभी STR. कुछ नहीं देता मैं, कहाँ कुछ भी नहीं देने वाला. And this question is generally asked in your exam. तो क्या है बाद में बताऊंगा आपको. ओके क्या हो गया यहाँ पे? नंबर एंटर एनी नंबर. हाँ ओके एक ब्रैकेट ज्यादा हो गया. देखो ऐसे आपको एरर्स निकालने होंगे. कोई सिंटैक्स एरर होते हैं वो, मतलब कुछ आपने वहां पे ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा ब्रैकेट्स दिया है नहीं दिया. अभी यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ देखो. क्या आंसर है यहाँ पे? 34.
Can anybody give the justification for this answer? Why this 34 is come? सर वो स्ट्रिंग में सेव हुआ ना. Yes. Perfect. That is correct answer. Yes. By default, when you are not mentioning a data type for that input method, by default data type of that variable is string. What is the data type? String. All of you getting? तो यहाँ पे 3 को उसने क्या कंसिडर किया? What consider by that 3 को क्या कंसिडर किया उसने? String. और 4 को भी क्या कंसिडर किया? String. और जब दो स्ट्रिंग को आप प्लस ऑपरेटर यूज करते हैं तब उसका कॉन्केटिनेशन होता है. क्या होता है? कॉन्केटिनेशन मतलब दो स्ट्रिंग कंबाइन होते हैं, तो उसका कंबाइन करके क्या मिला हमें? 34. अभी हम क्या करेंगे? सिंपल है, आपको यहाँ पे इनपुट अलग देके देता हूँ. अभी ये कॉन्केटिनेशन हम चैप्टर नंबर 4 में देखने वाले हैं. और इन व्हाट स्ट्रिंग टॉपिक. यहाँ पे मैंने अमोल दिया, यहाँ पे डुमरे करके और एक सरनेम दिया. नाउ विल गेट द आउटपुट अमोल डुमरे. Yes or no? Yes, sir. All of you clear with this? Yes, or sir. no? Yes, sir. हाँ, so by default आपको स्ट्रिंग डेटा टाइप लेना है तो आपको str मेंशन करने की जरूरत है क्या? नहीं. Simply what you have to write then? Input. Yes, input function. और आपने ऐसा किया तो भी कुछ प्रॉब्लम होने वाला नहीं है. वैसे भी यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गया. str. Yes. तो उससे कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या? No. तो उसको str कंसीडर करने. तो all of you getting clear with this? Yes, sir. Yes, sir. They are getting the output. So any doubt regarding the input method that we have used right now? अभी यही मेथड आपको एक्सपेरिमेंट नंबर जब 1 देखेंगे हम आज प्रैक्टिकल सेशन में, तब आपको यूज करना है. So in this on this question someone क्या मतलब famous question will be asked. By default, what is the data type of input method or input function in Python? str. str is the one of the option that you can choose from that specific 4 option. str is there, int is there, float is there, and complex is there. So anybody having any doubt regarding this topic now? No, sir. No, sir. नेक्स्ट टॉपिक कमेंट्स. तो कमेंट तो ऑलरेडी हमने देखा था, बिकॉज वो आपने पहले ही क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज दैट यू आर राइटिंग हियर इन दैट हैश और इन दैट डबल कोट. तो एनीबॉडी वांट टू रिपीट दैट कमेंट? कोई रिपीट कर सकता है व्हाट इज कमेंट? अभी मैंने ऑलरेडी लिया है वो. टेल मी व्हाट इज कमेंट. Executable part in program. Yes, perfect Which definition. is used to understand logical code. Yes, perfect आंसर. तो एग्जाम में क्वेश्चन जनरली थ्योरी एग्जाम जब होता था ना, ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता था. एक्सप्लेन कमेंट्स एंड व्हाट इज द यूज ऑफ कमेंट. तो एक्सप्लेन कमेंट में क्या करना? व्हाट इज कमेंट एंड व्हाट इज द यूज ऑफ कमेंट. तो कमेंट का डेफिनेशन है, कमेंट्स आर नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट इन द प्रोग्राम. कमेंट्स आर नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट इन द प्रोग्राम. जो तो अभी यहाँ पे जितने भी मैंने कमेंट में पार्ट डाला है उसका कुछ इंपैक्ट हो रहा है क्या आपके आउटपुट में? दिख रहा है क्या कुछ? वो यहाँ पे कुछ दिख रहा है क्या? Nice, sir. Yes. No, sir. Yes. So that is nothing but comment. And why we have to use? So they are just added to describe the statement in the program. They are just added to describe the statement in the program. जैसे कि मैंने यहाँ पे जो भी आप यहाँ पे लिखा है इनपुट फंक्शन, उसके नीचे मैंने इनपुट का कोड लिखा है. उसके बाद नेक्स्ट थिंग, comments make a program easily readable and understand by the programmer. Comment makes program easily readable and understandable by programmer. All of you getting clear with the comments? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Next thing, there are 2 types of comment. So यहाँ पे जो comment मैंने लिखा है, this type of comment is what? Multi-line comment. Yes or no? Clear है? Yes, sir. And this type of comment is not what? Single line comment. line. Single line comment. So comment पे आपको question definitely एक question हो सकता है. Which of the symbol is used to specify the comment? It can be single line comment or it can be multi. Generally actually क्या है, आपके सिलेबस में आपको दिया नहीं है, रीमा थर्जा का जो बुक है और आपके जो एसपीवी का सिलेबस, उसमें मेंशन नहीं किया है मल्टी लाइन कमेंट. बट आपको मैंने आपको एक नॉलेज पर्पस के लिए मैं आपको यहाँ पे बताया कि यू कैन यूज मल्टी लाइन कमेंट, ऐसा यूज कर सकते हैं. तो जनरली क्वेश्चन आपको सिंगल लाइन कमेंट पे होता है. तो विच सिंबल वी हैव टू यूज फॉर दैट सिंगल लाइन कमेंट? Hash. Yes. So all of you clear with what are the questions that will be asked on input method and
comment? Yes, sir. Yes, sir. yes. Okay. Now next thing. हाँ बोला. एक ही लाइन में सब कुछ कर सकते हैं, नम 1 नम 2 नम 3, वो जो आपने 3 लाइन में किया है वो. Yes, yes कर सकते हैं. उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? वो yes सेमीकोलन देना पड़ेगा आपको. फॉर एग्जांपल अभी यहाँ से मैं कट करता हूँ, बट दैट इज नॉट अ गुड वे ऑफ राइटिंग द कोड. That is not a good way of writing the code or any program. कभी-कभी ऐसा इंटर दबाए तो डायरेक्ट आउटपुट. नहीं ऐसा है, तो यहाँ पे मैंने क्या दिया, सेमीकोलन दिया, and ये ऊपर एक ऐड किया. ऐसा ही बोल रहे ना आप? Yes or no? Okay. So we can do this. We can run this. Getting? Any doubt? हाँ, but what will happen with respect to this? क्या है इसका मतलब? Whether this is a good way of writing any code? Semicolon is for what? A separation of two statements. That cannot be used in Python. But if you want to give the two statements in one line, so for that purpose you can use semicolon. Clear है? Yes or no? तो इससे पता चल रहा है सेमीकोलन के बाद वो न्यू लाइन कंसीडर कर रहा है. All of you getting this? New line means new state instruction is considered for this. All of you clear with this? Yes, sir. So for what purpose we have used? Semicolon is used for to separate what? Two instructions. So anybody having any doubt regarding this? इसके रिगार्डिंग कुछ कोई पूछेगा नहीं, बट फिर भी आप याद रखो सेमीकोलन किसके लिए यूज किया जाता है. जनरली जिन्होंने C++ देखा होगा, किया होगा, each and every line on in that C code must be closed with what? Semicolon. Yes. Now next important topic with respect to this unit is hash. I will write reserved words. Reserved words in Python. Now anybody can tell me what is a reserved word? उसके नाम में उसका क्या है मीनिंग छुपा है? Anybody? The words which are reserved for particular functions. Yes, perfect. Or we can in proper definition we can in every programming language there are certain words and which have predefined meaning. In every programming language, what is there? Some certain words are there which have predefined meaning. Predefined meaning means क्या? जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या यूज किया था, प्रिंट यूज किया था. सो प्रिंट का प्रीडिफाइंड मीनिंग क्या है? प्रिंट का यूज क्या होता है यहाँ पे? टू डिस्प्ले द आउटपुट. तो कुछ तो प्रिंट की जगह पे मैंने यहाँ पे str की जगह पे ने str1 लिखा यहाँ पे, चलेगा? नो सर. बिकॉज str1 के लिए कुछ प्रीडिफाइंड मीनिंग नहीं है. किसमें? पाइथन में. किसके लिए प्रीडिफाइंड मीनिंग है? str के लिए. That is str text. It is considered nothing but a string data type. All of you clear with this? Now different अभी कीवर्ड क्या है वो बात को बताता हूँ. यहाँ पे कुछ यहाँ पे लिखता हूँ आपके बुक में. आप एक बार देखो टेबल दिया है उसमें, आप एक बार देखो जैसे कि एंड, उसके बाद ब्रेक, ये सारे यूज करने वाले हम वन बाय वन. जैसे जैसे हम प्रोग्रामिंग सीखेंगे आगे कंटिन्यू, ये सारे सेकंड चैप्टर में देखा. देखो अभी जब मैं इसको लिख रहा हूँ, when I am typing this, what will happen with the font? What will happen? Yes. और जो यहाँ पे मैंने नॉर्मल वर्ड्स लिखे, वेरिएबल्स लिखे, उसका कलर क्या है? ब्लैक. Why black? Because those are user defined words. Those are what? User defined words. All of you clear with this? Yes, sir. Okay. उसके बाद यहाँ पे is, in, not in, is not. अभी ये सारे देखने वाले हम वन बाय वन बाद में. रिटर्न सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि these are the words which are given which having what predefined meaning. उसके बाद try, उसके बाद print ऑलरेडी हुआ है, लिखा है ऑलरेडी हमने यूज किया. उसके बाद from, उसके बाद pass, yes, range.
ओके रेंज अभी फंक्शन है, इसकी वजह से उसका फॉन्ट देखो क्या आ रहा है, फंक्शन का फॉन्ट देखो क्या आ रहा है, ऊपर इनपुट का फॉन्ट देखो क्या आ रहा है. सम चेंजेस आर, यू आर सीइंग द चेंजेस इन फॉन्ट्स. यस सर. हाँ, जो फंक्शन होता है ना, फंक्शन में कुछ पैरामीटर पास करने होते हैं और कीवर्ड जो होते हैं वो डायरेक्टली यूज करते हैं हम. ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस? यस और नो? ओके. उसके बाद नॉट तो हुआ है, एलिफ और इफ यू, हाँ इफ नहीं हुआ है. इफ उसके बाद ब्रेक हुआ, कंटिन्यू हो गया. क्लास, जब हम क्लास टॉपिक देखेंगे उसमें क्लास भी है. व्हाइल इज देयर, जब सेकंड चैप्टर में व्हाइल देखेंगे. उसके बाद फॉर इज देयर. So lots of keywords are there. Lambda, yes, lambda is there, which are used in your chapter number 3. That is function topic में हम lambda use करने का. Global is there, yes. Global keyword used for what? To make your variable as a global. वो बाद में बताऊंगा आपको क्या है. So all of you clear with the reserve words which are available in Python? इसका मीनिंग में आपको हर जैसे ब्रेक स्टेटमेंट सेकंड चैप्टर में यूज करने वाले, कंटिन्यू स्टेटमेंट थर्ड चैप्टर में, और इज देयर, और एंड अभी यूज करने वाले चैप्टर नंबर 1 में आपको बताऊंगा मैं. हाँ, सो एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट रिगार्डिंग रिजर्व वर्ड्स? नो सर. हाँ, तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन होता व्हाट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू रिजर्व वर्ड्स. तो उसमें ऐसा कुछ तो होगा स्टेटमेंट. So reserved words are the words which are given by a specific programming language and which having predefined meaning. All of you clear with this? Yes sir. So all एक मुझे याद बताओ, और एक बात याद रखनी है आपको. Reserved word cannot be your variable name. Reserved word cannot be your variable name. That thing you have to remember. Yes or no? Clear है सबको? Reserved word cannot be your, टेल मी, वेरिएबल नेम और आइडेंटिफायर नेम. क्लियर है? ये भी क्वेश्चन आपको हो सकता है उसमें. यस और नो? क्लियर है सबको? ओके. सो एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट रिगार्डिंग रिजर्व वर्ड्स इन पाइथन? नो सर. यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट बहुत से कीवर्ड्स यहाँ पे मैंने आपको दिखाए हैं. यू कैन रिमेंबर, बुक में आपको दिए, बुक में सारे वर्ड्स उन्होंने दिए, कीवर्ड्स वहां पे मेंशन किए. यू कैन गो फॉर, जैसे भी वैसे भी हम क्या करने वाले, जब हमारा सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर होगा, ये सारे वर्ड्स वहां पे आने वाले, कीवर्ड्स आने वाले जो यूज करने वाले हम. सो मुझे लगता है कि वेदर फास्ट नहीं हो रहा है ज्यादा? नो. फास्ट हो रहा है क्या? नो. इफ फास्ट हो रहा है तो यू कैन टेल मी, आई विल स्पीड कम करूंगा मैं. बट आई थिंक ये स्पीड ठीक है. वहां पे टाइप करके भी वहां पे दिखा रहा हूं आपको मैं, तो उससे भी आपको टाइम मिल रहा है वहां पे सोचने के लिए बीच में. सो हाँ बोलो सर. मेरे इसमें ELIF क्या रहता है? एलिफ का कलर अलग आ गया. क्या हो गया? क्या लिखा है आपने? ELIF, वो एलिफ, वो. हाँ, कलर क्या है आपके इसमें? ब्लू. एलिफ का कलर आगे क्या है? कंपैरेटिव वैरी भी हो सकता है, वो डिपेंडिंग अपन. अभी जब टेक्स्ट एडिटर यूज करते हैं तो उसमें कुछ कलर भी नहीं आता है. When you are using it, हाँ, एलिफ का ब्लू आया, फाइल का भी ब्लू आया. नहीं नहीं, यहाँ पे तो मेरा तो यही है, दैट इज अ कीवर्ड, तो वहां पे वही आना चाहिए. देखो ये देखते हैं हम, आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजो, आई विल सी दैट स्पेसिफिक जो आपको आया है ना, स्क्रीनशॉट भेजो, आई विल चेक एंड आई विल check it, and once I have clarified that, I will tell you the doubts regarding that. Okay, clear है? But I think उससे कुछ इतना impact नहीं होता है जनरली. Getting? आपका आउटपुट आएगा आपका, जो भी आप एलिफ यूज करेंगे सेकंड चैप्टर में. इफ और एलिफ, एलसिफ, एक्चुअली एलिफ मींस एलसिफ होता है, वो जो आप C++ में एलसिफ यूज किया होगा जिन्होंने किया है. बट यहाँ पे एलसिफ नहीं यूज होता है, यहाँ पे एलिफ यूज होता है. गेटिंग? बाद में 1 by 1 हम सारी चीजें डिटेल में देखने वाले हैं. आप सिर्फ यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए कि रिजर्व वर्ड क्या है, बिकॉज हम बेसिक देख रहे हैं अभी. ऑल ऑफ यू क्लियर विद दिस? यस सर. ओके. और कोई यहाँ पे वर्ड आपका वर्क नहीं हो रहा है तो आप बोलो वो फॉन्ट वगैरह दैट विल बी वेरी विद रिस्पेक्ट टू कंपाइलर और दैट वर्जन. बट फिर भी आप देखो, जिस अभी व्हाट इज योर नेम, जिसने अभी डाउट पूछा? हेलो. हाँ, yes, you send me the screenshot of that specific thing. I will check and I will clarify your doubt regarding that same thing. Okay? Yes or no? Yes. Okay. So up till now, anybody having any doubt
regarding No, what these reserve words, input function. Okay, so can we move forward? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now, next thing with respect to this first topic is indentation. This is also one of the very important feature of that specific Python program, indentation. बहुत ही important topic है और इसकी वजह से most of the students have got the errors. अभी आप आगे देखेंगे, जब आप चैप्टर नंबर 2 के प्रोग्राम देखेंगे तब आपको पता चलेगा why you are getting the errors and why indentation is important. So what is the definition of indentation? तो इंडेंटेशन की डेफिनेशन क्या है, यहाँ पे आपको डायरेक्टली मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ. सो इंडेंटेशन इज द व्हाइट स्पेस at the beginning of the line is called, or directly white space is at the beginning of line is called what? Indentation. So white space at the beginning of the line means kya? Anybody can tell me? Beginning of the line means what? कौन से beginning? Which line? जो भी आप कोड लिख रहे हैं ना, yes, कोड लिख रहे हैं, यहाँ पे मैं इसको कमेंट डालता हूँ, अभी आपको दिखाता हूँ यहाँ पे. अभी यहाँ पे कमेंट नहीं, यहाँ पे कुछ करता हूँ मैं. अभी यहाँ पे मैंने कुछ ये किया क्या, डायरेक्टली लिखा है ना, कुछ स्पेस दिया है क्या? नो सर. अभी क्या करता देखो. Now we are getting the space ना? Yes, sir. So I will run this code now. What you are all of you getting the the error is there? Yes, sir. Yes, sir. Indentation error, unexpected indent. Why unexpected indent? Because वहां पे जरूरत नहीं थी, तो फिर भी आपने क्या दिया, वहां पे इंडेंटेशन दिया है, वहां पे आपने वाइट स्पेस दिया है. All of you getting this? Yes, sir. Yes, sir. So how many types are? I will tell you 2 types of errors are there. One is unexpected indent, another one is expected indent. So all of you note down this. There are 2 types of error. Which will occur due to indentation. Okay, all of you clear? Yes. Yes, बोलो sir. ना. First one is Yes, sir. unexpected and second one is expected. अभी unexpected का पता चला आपने क्या किया है? unexpected पता चला क्या यूज Yes, किया sir. हमने? क्यों आया? क्यों वहां पे जरूरत नहीं थी. अभी जरूरत नहीं थी उधर. यस, अभी एक्सपेक्टेड का आपको एक्चुअली टॉपिक सेकंड चैप्टर में देखने वाले थे, फिर भी आपको यहाँ पे आपको एक करके दिखाता हूँ. अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा, इफ 2 greater than 3. अरे यहाँ पे कोलन, ये इफ का सिंटैक्स बाद में बताऊंगा आपको. अब यहाँ पे आप इसके ऊपर कुछ क्या करो, ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है. जब ये टॉपिक आएगा सेकंड चैप्टर में तब आपको बताऊंगा. देखो अभी सी हियर, जैसे मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस किया, व्हाट विल हैपन? नीचे के लाइन में शिफ्ट हो. यस, नीचे के लाइन में आया, बट व्हाट इज हैपन एक्चुअली? It's automatically indented. यस, वहां पे सेकंड लाइन पे बाय डिफॉल्ट उसने इंडेंटेशन. तो वहां इंडेंटेशन, वहां पे इंडेंटेशन की जरूरत है. ऑल ऑफ यू गेटिंग? Yes, sir. फॉर इफ स्टेटमेंट देयर इज अ नीड ऑफ व्हाट? इंडेंटेशन स्टेटमेंट. फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट 2 is less than, but 2 ने यहाँ पे एक वेरिएबल लिखा है एक्चुअली. आई विल टेक वन वेरिएबल. a is equal to 5 and b is equal to 6. बाद में हम देखेंगे, इसका डिटेल में देखेंगे. a greater than b, a is less than b, ऐसा मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ. सर तिथं बी ग्रेटर दॅन ए पाहिजे ना. कुठे रे? हा तुम्ही आता करेक्ट केला ते. ओके, ठीक आहे ना. काय ते प्रिंट स्टेटमेंट मला ते दाखवायचं, मला ते ऍक्च्युअली तो कोड इफचा आपण नंतर पाहू. मला फक्त एक दाखवायचंय की
I want to show what is the indentation error regarding expected and unexpected. त्यानंतर त्याचा काय फरक पडत नाही, ते प्रिंट स्टेटमेंट मध्ये काय लिहिलंय ती कंडिशन काय. ओके, फक्त एकदा चेक करू आपण. ओके, if condition we will see decision making statement and control statements. In that I will tell what is if and how that condition will be there. यहाँ पे देखो अभी ब्रेक कहाँ पे ब्रेक का लिखा है हमने. हाँ यहाँ पे, हाँ ये पार्ट हमने क्या किया है, कमेंट नहीं दिया इसको. आई विल गिव यू कमेंट फॉर दिस पार्ट. ओके, समझ में आ रहा है. कमेंट नहीं देने से क्या होता है, दोज विल बी कंसिडर एज ए स्टेटमेंट्स. एंटर नंबर, ये किसका है एंटर नंबर वाला, ऊपर का है. ओके, आई विल रन दिस आल्सो. A is less than B. Why this statement is executed? Because ये condition क्या हो रहा है, फुलफिल हो रहा है. yes, fulfill हो रहा है उसके, हाँ yes, satisfy हो रहा है उसके अंदर. वो जा रहा है, किसके अंदर जा रहा है फिर वो, if के ब्लॉक के अंदर जा रहा है वो. ओके, अभी सिंपल, अभी क्या कर रहा हूँ देखो मैं, अरे इसको भी कमेंट डालता हूँ तो क्या होगा, ये हमें एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है फिर. Now what will happen, we will see this. All of you getting the indentation part? Yes, sir. Yes, sir. So what is the meaning of indentation? White space at the beginning of the line. And again, two things you have to remember. Indentation is required at specific point only. At each and every point हमें indentation की जरूरत नहीं है. जहां पे जरूरत है वो बाय डिफॉल्ट कंपाइलर आपको वहां पे डिटेक्ट करेगा. जैसे कि यहाँ पे आ रहा है, बाय डिफॉल्ट इंडेंटेशन आ रहा है. हाँ, बट अभी जब ये प्रोग्रामिंग आप कहाँ पे कर रहे हैं, नोटपैड पे कर रहे हैं, नॉर्मल नोटपैड, तो वहां पे ये चीजें आपको हैंडल करनी पड़ेगी खुद से. यस और नो? यस सर. जो बाय डिफॉल्ट एडिटर होते हैं ना, आईडी या पाइथन के जो एडिटर दिए, इंटरप्रेटर दिए, आईडीडी और जो भी, वहां पे बाय डिफॉल्ट वहां पे होता है वो. बट जब आप यहाँ पे नोटपैड में करेंगे, उसको सेव करेंगे, तो आपको यहाँ पे फोर्सफुली आपको इंडेंटेशन देना पड़ेगा. ऑल ऑफ यू क्लियर? यस सर. और दो टाइप के एरर समझ में आए सबको? यस और नो? यस सर. Yes, sir. सो इंडेंटेशन के बारे में किसी को कुछ डाउट है, यू कैन आस्क sir. मी. यू कैन आस्क No, मी. sir. नो सर. ओके. No, sir. Okay, so I think time is up. So we will stop here, and in tomorrow's lecture we will cover one topic: operators in Python. Operators in what? Python. Python. So different types of, total 8 types of operators are there. Actually syllabus में आपको सिर्फ operator क्या है और उसके regarding some of the operator के regarding होंगे जो प्रोग्राम में पूछे जाते हैं, बट सारे नहीं है, पर फिर भी आपको एक एक एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा मैं. In next lecture we will see all types of operator. So that is our last topic I think. Last topic और expression. तो expression actually हमने देखा है अभी, जैसे कि जितने भी यहाँ पे कुछ प्रोग्राम किया हमने, सारे expression ही थे. तो expression के ऊपर इतना कुछ डिटेल में स्टडी करने की जरूरत नहीं है हमें. फिर भी एक बार बताऊंगा आपको व्हाट इज एक्सप्रेशन. और एक टॉपिक बचा है एस्केप सीक्वेंस, दैट इज स्लैश एन क्या होता है, स्लैश टी क्या होता है, वो एक बार देखेंगे. और एक कौन सा टॉपिक था, हाँ, फॉर्मेट फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू फ्लोट, वो बाकी था हमारा. सो दैट वी विल कवर. वो कवर करेंगे क्या, 2 मिनट का टॉपिक है, आज कवर करेंगे? यस और नो? 2 मिनट में हो जाएगा वो फॉर्मेट, नहीं तो बाद में हाँ, क्योंकि क्या होता है बाद में याद नहीं रहेगा, तो बिकॉज दैट इज नॉट इन योर सिलेबस एक्चुअली, बट आई विल टेल यू. फॉर एग्जांपल आई हैव रिटन हियर directly one statement. I will write print in bracket, for example I will take two variables for this. A is equal to 5 and B equal to 6. Okay, यहाँ पे मैंने एक ऑपरेशन किया, A डिवाइड बाय B. नहीं, कुछ अलग लेते हैं, डेसिमल में कुछ आंसर आना चाहिए. नीचे लेते हैं 3. हाँ, so what will happen here? We are getting the output na 3 point something, yes, something 15 16. Now we have to manage these bits.
अभी कभी कभी पूछा है कि मतलब आपको देखेगा, आप क्वेश्चन बैंक में भी देखने को मिलेगा इस टाइप का क्वेश्चन, और पूछते भी जनरली। अभी इसको क्या करना है, हमें कुछ मैनेज करने ये बिट्स, तो इसके लिए मैंने अभी यहाँ पे कुछ कर रहा हूँ, देखो आप फॉर्मेट करके एक फंक्शन यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। ऑल ऑफ यू नोट डाउन दिस थिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू कॉमा करके मैंने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आई थिंक आई हैव रिटन हियर, इसको मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। Now tell me what will happen here. What is happen here? तो फिर 2 डेसिमल प्लेस ही आए। Yes. तो all of you write down this. इसके ऊपर जनरली ट्रिक क्वेश्चन में ये क्वेश्चन होता है, जो भी 5 to 6 trick questions are there. In that, likewise, the one question will be there. Format function is used to handle what? Decimal places. Yes or no? Okay. So format function का सिंटैक्स क्या याद रखना है आपको? फॉर्मेट लिखना है, उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर आपको क्या करना है, जिसका भी डिवीजन करना है वो लिखना है, कॉमा करके यहाँ पे सिंगल कोट में क्या लिखना है, डॉट टू का मीनिंग क्या हो गया, डॉट के बाद कितने डिजिट्स आने चाहिए? यस, 2 डेसिमल्स आने चाहिए। दिस इज अ स्टैंडर्ड सिंटैक्स गिवन बाय पाइथन। अभी 3 करने के बाद क्या आएगा? 3 days। सो ऐसा आपको क्वेश्चन होगा आपके एग्जाम में, ट्रिकी में ऐसा क्वेश्चन होता है। जनरली क्या होता है, सिलेबस में ये नहीं है तो कवर, कुछ फैकल्टीज कवर भी नहीं करते, कुछ करते हैं, मतलब लाइकवाइज डिपेंडिंग अपॉन द फैकल्टी, बिकॉज सिलेबस में तो कहाँ पे दिया नहीं, बट बुक में ये चीजें, ये रेफरेंस बुक, इसलिए मैंने आपको रेफरेंस बुक यूज करने के लिए बोला। रेफरेंस बुक में क्या होता है, सारी चीजें दी जाती है, मतलब जब रेटर कांस्टेंट दिखेंगे तो आपको फॉर्मेट नाम का फंक्शन वहां पे मिलेगा आपको बुक में। इसलिए मैंने आपको रीमा थर्जा का बुक, वो एक्चुअली सिलेबस के थ्रू हिसाब से उन्होंने डिजाइन किया है। ओके, सो ऑल ऑफ यू क्लियर विद द फॉर्मेट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स? यस सर। एनी डाउट रिगार्डिंग दिस? सिंटैक्स आपको याद रखना है प्रॉपर्ली। क्या है सिंटैक्स? फॉर्मेट फंक्शन, उसके अंदर आपको डिवीजन जिसका करना है वो लिखो, कॉमा करके सिंगल कोट में सिंपली यू कैन राइट जितना मैनेज करना है आपको, हैंडल करना है डेसिमल प्लेसेस, दैट यू हैव टू राइट। ओके, ऑल ऑफ यू क्लियर? यस सर। So I think we will stop here now. I will take the attendance for today's session. Wait for 1 minute. So anybody having doubt? नो कोई सर। डाउट है? ओके, सो इफ योर डाउट, अभी आज का होमवर्क देखो, आप क्या करना है आज का होमवर्क, write a program, take a input from user, write a program to take a input from user for all 4 data types, and display the results. All of you clear with this? कल का जो प्रोग्राम किया था आपने, वही प्रोग्राम आपको किससे करना है? हेलो, एंड यूजर से वैल्यू। यस, जहां पे आपने डायरेक्ट वैल्यूज असाइन किए थे, वहां पे आपको आगे लिखना है इनपुट मेथड और वन कर, और यहाँ पे आप याद रखना है, ये बटन आप याद रखो, इंटरैक्टिव बटन ऑन करो, नहीं तो आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा, मतलब आपको इनपुट के लिए पूछेगा नहीं वो। ऑल ऑफ यू क्लियर विद दिस? यस सर। समझ में आ रहा है? सर रिपीट करना क्वेश्चन। राइट अ प्रोग्राम, क्वेश्चन रिपीट। yes, write a program to take a input from user, for all 4 data types, and display the result. अरे सिंपल आहे, कालचा जो प्रोग्राम केलाय तोच प्रोग्राम करायचा आहे, फक्त कशाने करायचा आहे? इनपुट मेथड. कळलं सर, क्वेश्चन लिहित होता. Yes, okay. All of you clear with this? Yes sir. Yes, sir. So all of you do that specific homework, and I will take the attendance for today's session. Roll number 1.
Present, sir. Sir, from division C or division another? Both you have to give the attendance. You Yes, have to sir, from tell division CR. C, present. Yes. Division B. Division B, roll number 1. Okay. Roll number 2. Present, sir. Okay. C present, sir. Okay. 3. Roll number 3. B3 present, Sir, C division. Okay. 4. B4 present. Those have mic problem, they can post write in chat box. Right. Roll number 5, C present. Okay. Roll number 6. Present B5. Yes. 6. C6 present, sir. C6. Present. Okay. 7. B7. C7 present. 8 number. Roll number 8. B8 present. C8 Okay. Roll number 9. B9 present. Okay. I want to attend. Sabko attendance mandatory for lab session at 2:30. All of you clear that? Yes, sir. Okay. We are see first assignment regarding that. Lab assignment number 1. Okay. Roll number 8. Roll number 8. Okay. 9. B8 present, sir. B9 Okay. present, sir. Okay. C9. Okay. 10. Roll number 10. B10 present, sir. Okay. 11. Roll number 11. C11 present. Okay. 12. C12 present, B12 sir. present, sir. Okay. 13. C13 present, sir. Okay. 14. Present, sir. Sir, B14 present, sir. Okay. 16. 15. 15. Present, sir. Okay. 16. B16 present. C16 Okay. present. 17. Present, sir. Okay. sir. 18. B18 present. Okay. 19. B19 present. Okay. 20. C20 present. 20 present. 21. B21 present, C21 present, sir. Okay. 22. C22 present, sir. Okay. 23. B23 present, sir. Okay. 24. C24 present, sir. Okay. B24. Okay. 25. B25 present, sir. 26. 25. C. Sir, he has written in the chat box C25. Okay. 26. 26. B26 present, sir. C26. Nahi, I think. 27. 27. B27. Absent. 28. C28 present. Okay. 29. C21 present. 30. C30 present, sir. Okay. 31. C31 present, sir. 32. B32 present, sir. Okay. 34. 33. B33 present, sir. Okay. 34. C34 present, sir. Okay. 35. C35 present. Okay. 36. Okay. 36. C36 present, sir. 38. 37 Ryland, sir. 37. C37 present. Okay. 38. 38. Both are absent, I think. 39. B39 present. C39 is also present. 30, 39, 30, 40, 40. C40 present, sir. B07 present. B07 present. Okay. B40 present. Sir, B07. Okay. Sir, C40 41, 41, 41. 41 is present. Okay. 42. C42 present. Okay. Sir, B40. Okay. 43. 43. Okay. C43 present. B43. 44. Present. B44 present, sir. Okay. 45. Sir, B45 present, sir. Okay. C45 is also present. 47. 46. 46. B46 present. C46.
C46. Okay. 47. C47 present, sir. Okay. B47. B47 Okay. present. Okay. sir. Okay. 48. Present, sir. B48 present, sir. B48 C47. present. Okay. C47. 48 also present. 49. 49. Okay. C49 is present. B49. 50. 50. B50 present. B50. Okay. Okay. 51. 51. C51 present, sir. Okay. 52. B52 present, sir. C50 is also present. 53. 53. 53 B absent. 54. C54 present, sir. Okay. 55. B55 present, sir. 57. 58. Sir, B56 present, sir. 56 present. Okay. 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 57. Yes, sir. 57. B57 present, sir. 58. C present. 58. B58. B58. Okay. Now C is 59. C59 present, sir. Okay. 60. Present. 61. Present. 62. 62. C 62. 62 present, 63. sir. 63. Present. 64. 64. Present. 65. Present, sir. 66. Present, sir. 67. 67. Present. 68. 6 present, sir. Okay. Absent number for C division I will tell. 9, 38, 46. 9, 46 38, present. 40. 46. Okay, okay. 9 and 38 absent then. Okay. And for B division 24, 27, 38, 53 and 58. Sir, Okay. 53 present. 53 present. Okay. So 24, 27, 38 and 58 absent. So all of you left now. We will meet for a practical session. Okay. Thank you.